Hi friends, this is Vijay. Welcome to our channel Teaching Exams Made Easy. Today we will discuss some of the most important questions on child development and pedagogy, which is very much useful for the upcoming exams like KV, NV, CTET, OTET, OSS TET, and CT Weird entrance. Okay, this will basically cover all the teaching exams. So friends, before we start, one request to all, please subscribe my channel, like it, share it, and press the bell icon and encourage me to make more videos for you. So let's start today's session. So the first question is in front of you. What is negative reinforcement? Option A, any consequence where something pleasurable is added. Option B, any consequence where something unpleasant is taken away. Option C, any consequence where something pleasant is taken away. And that is option D, any consequence where something unpleasurable is added. So से कौन कहूची नेगेटिव रेनफोर्समेंट काहाको कहा जाए. So एठी आंसर कौन हबो. So here the answer will be, that is एठी आंसर हबो option B. Okay, so option B हबो right answer. So negative reinforcement is also for good purpose. Okay, so if we'll take an example, if a child is chewing gum in the class, gote chewing gum jodi gote child class re khauchi, so this is the responsibility of a teacher to maintain discipline in the class. So okay, so the teacher may uh, threaten the child, or the teacher may punish the child to maintain discipline. So this is, we can say this, a negative reinforcement. So what happens, एटी कौन हुए ना, एटी गोटे किसी अनप्लीजेंट बिहेवियर को कौन कहा जाए ना, दूरे दिया जाए, एराडिकेट कर दिया जाए. So this is called negative reinforcement. Clear? Move on to the next question, that is question number 2. Toy age refers to option A, early childhood, option B, later childhood, option C, infancy, and option D, adulthood. Toy age जोठी आम कौन कर खेलना, जो बयस मैंने खेलना सहित खेलुचे से कौ एज को कहुए. सो ये आंसर कौन हम. सो टॉय एज बेसिकली रेफर्स टू द अर्ली चाइल्डहुड एज. ओके, सो अर्ली चाइल्डहुड एज केते वर्ष रु केते वर्ष. सो अर्ली चाइल्डहुड होची 2 to 6 years. Okay, clear? Move on to the next question, that is question number 3. Which of these is an unconditioned stimulus? Okay, this is a very good question. Option A, food. Option B, loud noise. Option C, shock. And option D, all of the above. So unconditioned stimulus कौन ना, जोटा को आम ओडिया कहे अनियंत्रित उद्दीपना जोटा होची, माने आमे जोटा कंट्रोल करि परिबेनी. आमको भोक करूची, खाइबा देखले आमर पार्टी ऑटोमेटिकली सालिबा बा लाळ बाहरिबो. जदि कोटी लाउड नॉइज बाजुची तो हमको भय लागिबो, कोटी गोटे शॉक लागिला, सो फियर क्रिएट हबो. सो ये आंसर कौन हबो ना, ऑल ऑफ द एबव हबो. कहीं ना ये जो स्टिमुलस को आम कौन करें कंट्रोल करें, अनकंट्रोलेबल अनकंडीशन स्टिमुलस. सो ये आंसर हम ऑल ऑफ द एबव. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, से कौन कहूँ क्वेश्चन ना, व्हाट टर्म इज गिवन to the finding that a response is reduced, it is no longer strengthened. जदि गोटे रेस्पॉन्स आउ फर्दर रेस्पॉन्स मिलूनी ताहले ताको कौन कह. ऑप्शन ए, एक्सटिंक्शन. ऑप्शन बी, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स. ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी. ऑप्शन डी से कौच कंडीशनड रेस्पॉन्स. सो ये आंसर कौन हम ना, ये आंसर हम ना ऑप्शन ए, दैट इज एक्सटिंक्शन. सो एक्सटिंक्शन कौन ना, विलुप्त हो जाइए, रेस्पॉन्स विलुप्त, आउ रेस्पॉन्स मिलूनी. ओके, रेस्पॉन्स गायब हो जाइए, सो सेठी एक्सटिंक्शन हम आंसर. Clear? So move on to the next question, that is question number 5. से कहूची difficulty in recalling sequence of letters in words and frequent loss of visual memory is associated with. Option A, dyslexia. Option B, dyscalculia. Option C, aphasia. And option D, that is autism. So ये जो गुड़ा अच्छी चार्टा, dyslexia, dyscalculia,
अफासिया और ऑटिज्म ये चार्टारू मोस्ट ऑफ द एग्जाम रे क्वेश्चन आसे गोटे अफासिया कौन पचार कि ऑटिज्म क्या कि डिसकालकुलिया क्या कहते कि डायस्लेक्सिया क्या कहते सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स सो ये आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए डिसलेक्सिया हम आंसर सो जो आम कौन कर कौन जिनस को रिकल करने प्रोब्लेम फेस करचे कौन वार्ड को आसोसिएट करने माने एमती सिंक्रोनाइज करने प्रोब्लेम फेस करचे सेठी आम कौन कहुए ना डिसलेक्सिया सो गोटे एग्जांपल देले बुझीपर सो जदि मुझे गोटे आपेल लिखुची गोटे वर्ड ओके सो मुझे गोटे वर्ड लिखिली आपेल ए पी पी एल ई ओके सपोज गोटे पिला रिकल करि पारुनी ए पी पी एल ई को ए पी एल ई कि एमती किसी भूल करुच्ची सो सेटा को कौन कह ना ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया ओके सो ताको कह डिसलेक्सिया सो आंसर विल बी ए क्लियर if we'll talk about that is dyscalculia okay dyscalculia क्या कहते जदि से गोटे मैथमेटिकल प्रोब्लेम न्यूमेरिकल प्रोब्लेम कर प्रोब्लेम फेस कर गोटे न्यूमेरिकल प्रोब्लेम कर पारुनी से गोटे न्यूमेरिकल जिनस किसी कर कैलकुलेशन उपर कथा आसले से डिसकालकुलिया यूज करें से डिसेबिलिटी को कहुए डिसकालकुलिया सो अफासिया कौन सो अफासिया इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड द रिटेन एंड स्पोकन लैंग्वेज आम जहाँ किसी लिखुचे रिटेन कि गोटे स्पोकन जदि गोटे लोक रिटेन लैंग्वेज कि स्पोकन लैंग्वेज को बुझापी ही इज इनकापेबल ताकू कह ही इज सफरिंग फ्रॉम अफासिया ओके सो आ गोटे अच्छी ऑटिज्म so this autism this question comes often this question is often seen in the exam autism कौन ना when a person suffers difficulty with communication and social interaction तार कौन प्रोब्लेम होतिबो ना कम्युनिकेशन करिवारे कम्युनिकेशन आ गोटे कह सोशल इंटराक्शन ओके सोशल इंटराक्शन से बेसी कर नथिबो सोसाइटी से मिसु नथिबो इन्वॉल्व हो नथिबो सो सेटा को आमे ऑटिज्म कहूचे सो एगोटा थिला आर एलाबोरेशन सो आमर ये आंसर कौन है ना ये क्वेश्चन आंसर आमर है दैट इज ओके सो ये आंसर है आमर कौन ना डिसलेक्सिया क्लियर सो ये आंसर है आमर ऑप्शन है डिसलेक्सिया क्लियर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 सुपर ईगो स्टेज अकर्स एट द एज ऑफ को एज रे आमे सुपर ईगो स्टेज माने हुए थे सो ये आम ये जो सुपर ईगो तीन टा जिनस मुझे कहूँ गोटे हूँ आईडी ओके गोटे हूँ आईडी आ गोटे हूँ ईगो आ गोटे हूँ सुपर ईगो ये तीन टा कौन ना फ्यूडकर साइकोसोशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस ओके आईडी ईगो एंड सुपर ईगो से क्वेश्चन पचार सुपर ईगो विषय सो सुपर ईगो कौन ना सुपर ईगो हूँ दिस अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 year ओके 3 to 6 year भितर सुपर ईगो होता है सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द it tells us about morality okay so this is a moral behavior morality आ जो आम कहवा आईडी विषय सो यहाँ कौन हुए ना इन्फान्सी पीरियड चाइल्डहुड पीरियड देखा जाए ईगोटा ना 1.5 years रु सेटा स्टार्ट होता है 3 years पर्यंत तापर 3 to 6 year आमर देखा जाए सुपर ईगो क्लियर सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 in moral development the pre-conventional stages occur during the age limit of okay so this is a very good question pre-conventional stage so ये देखिए आम pre-conventional stage विषय जब कथा आसो so एटा किए देथिले pre-conventional theory so different stage conventional pre-conventional ये theory किए देथिले ना कोलबर्ग okay कोलबर्ग का theory एटा कोलबर्ग का theory रो आछि सो से कौन कहते ना
The moral development, the pre-conventional stage occurs between the age of, that is option D, okay, 5 to 10 years भितर होता है pre-conventional stage. Move on to the next question, that is question number 8. Environmental factors that shape development include all of the following except. कोटा include करूनी environmental factor को. ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी फिजिक, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन. सो आम देखा ये कल्चर तो निहाती इनक्लूड करुच्ची, एजुकेशन तो निहाती एनवायरमेंट सहित इनक्लूड कर निहाती, न्यूट्रिशन भी इनक्लूड कर. सो ये फिजिक, सो फिजिक ये इनक्लूड करनी कौन ना ये सेफ डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर सहित इनक्लूड करूनी. ओके, so move on to the next question, that is question number 9. Emotion is originated through, okay, this question has been seen in many teaching exams. Okay, emotion, option A habits, option B instincts, option C physical development, and option D that is formation of concepts. So the answer कौन हम? So if जदि इमोशन कथा आसुची, so just remember this. So the answer हम option B. Okay, instinct will be the right answer. Clear? So move on to the next question, that is question number 10, and this is the last question of today's discussion session. Which group is called gang age? Okay, so gang age को group को कहा जाए. So option A infancy, option B early childhood, option C later childhood, and option D adolescence. So the answer कौन हम? No, gang age कहा जाए later childhood age को. Child रो टिके ऊपर को gang age, where the child the loves to form gangs. Okay, सेटा को आज गैंग एज, सेटा बेसिकली लाटर चाइल्डहुड रे होता है, चाइल्डहुड आग पर को परे परे सेटा होता है गैंग एज टा फॉर्मेशन होता है. एंड वी कैन आल्सो एटा केते केते वर्ष रे होता है ना, एटा लाटर चाइल्डहुड टा आस्था है जनरली 7 to 11 ईयर भीतर आस्था है. ओके, 7 ରୁ 11 वर्ष भीतर ए जोटा आस्था है. एंड सो एटा इट इज आल्सो पियाजेन को थ्योरी आम जब चिंता करवा. सो ये हूँ पियाजेन कंक्रीट ऑपरेशनल थ्योरी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आसूँ 7 ରୁ 11 वर्ष भितर. क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई विल ब्रिंग यू अ स्मॉल सेशन and many more important questions. So please like my channel, subscribe it, share it, and press the bell icon for regular updates. I hope this session will definitely help you. Thanks a lot. Thank you so much.